So last time how we did the dashboards, this time also we'll try to build some new type of dashboards, but this time we are using the railway related data, so it will be much more in detail. And since I belong to the stores department, our main objective is the material management. So here also I have taken the basic issue related data from our stores depot. So from the integrated material management system. So here you can first for what I must say, that for building the dashboards like here, we should understand first that what is the type of data we are dealing with, because that is the foremost important thing. Once we understand the data better, we will be able to achieve our targets very easily. And how to analyze that data, everything lies within the data itself, that how we can utilize the data to create different type of dashboards. So I'll take some minutes to explain the data first, because that is very important. It will help us in the longer run. Since I've taken the stores depot data, it need not be only stores data, but any sort of data within your office working will be easy. And I'll try to explain everything in the broader perspective, so that you can use the same techniques to create the dashboards, or basically uh, uh, what I must say, that it will prove to be beneficial to you. Okay, so here you can see it's a very basic data from column A till column P. So here, since I'll explain this data first. Quickly see that first in column A shows us the serial number, that from month of April till month of November, how much we have issued so far. So you can see that 2657 vouchers we have posted. And now the column B is showing me the wards, like how many wards, and since there are 3 wards in our depot, so it's showing me the wards. So if I summarize the nomenclature, you can see 61, 62 and 63, there are 3 wards. The date is, as the name is suggesting, the date. The D column is showing the voucher number. The card code of the issues, as we all know, S1313 is the 57 card code. The PL number is how the item is a semi-significant number, which determines what is basically the item is. And the description, as we can see, description, the quantity, how much material we have issued, wide that voucher number, what was the value of the total issue of that item, and what is the each unit rate. As I can see, each break block is of 1191.43 rupees. Since we issued the 10 break blocks, so the total value is coming this much. Okay, till A column till L column was a straight accurate data which I have taken from our integrated material management system. And then these are the 4 data which we have created, because to make the dashboard, which is that data, I wanted to the data to be much more varied. So the material may be issued to some other railway also, while sale issue note, and to which department of that railway, and during which month, and what was the subsequent quarter for the issue. So basically, from this data, we can take the gist. What we want to achieve is that I want to know that to which railway our store depot has issued, how much the value of the items, and during which month and which quarter, and to which department of that railway. So clearly from this data, we can arrive at what I can say, from this data we can arrive to the conclusion that 3-4 चीज़ें हो सकती हैं जो हम इसमें से निकाल सकते हैं easily. जैसे मैंने इसमें 5 पैरामीटर डिसाइड किए हैं, as we can see.
So this file name you can see raw data and here is a formula sheet. तो अब फॉर्मूला शीट में मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने अचीव इससे हो सकता है कि वार्ड वाइज मैंने कितना इशू किया है. तो फर्स्ट रो लेबल इज शोइंग मी वार्ड 61, 62, 63. ओके. सेकंड ऑब्जेक्टिव व्हाट वी कैन अचीव इज के किस डिपार्टमेंट को मैंने कितना इशू किया है. थर्ड इज 1, 2, 3 आर दीज आर द क्वार्टर्स, किस क्वार्टर में मैंने कितना इशू किया है. द फोर्थ रिजल्ट विच वी कैन अराइव इज कि किस मंथ में मैंने कितना इशू किया है. एंड द लास्ट मोस्ट इज द फिफ्थ रिजल्ट व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस डेटा इज कि किस रेलवे को हमारे स्टोर डिपो ने कितना इशू किया है. अभी कितना इशू किया है दैट इज, उसमें भी 3 क्राइटेरिया आ सकते हैं. कितने आइटम्स इशू किए हैं, उसका कितना वैल्यू था, एंड कितने हमने वाउचर्स पंच किए हैं टू इशू दैट. ओके, हाउ मेनी एज 13. तो ये 5 ब्रॉड एस्पेक्ट्स में हमें डेटा मिल गया है फ्रॉम द रॉ डेटा, और ऐसा हम डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे. सो इसमें हमने जैसे देखा था लास्ट लेसन में भी कि स्लाइसर्स हम यूज़ करते हैं. तो मैंने बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड बनाया है. बेसिकली इसमें इशू वैल्यू हमें दिखा रहा है, इस ग्राफ में हमें इशू वैल्यू दिखा रहा है, इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ आइटम्स इशूड दिखा रहा है, और इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ वाउचर्स हमने कितने इशू कर दिए. और ये हमारा जो बार ग्राफ है ये दिखा रहा है कि हमने क्वार्टर वाइज कितने इशू किए हैं. ये कितना वैल्यू का किस क्वार्टर में, 3 क्वार्टर होते हैं अप्रैल से लेकर नवंबर तक, तो हमने कितना उसमें इशू किया है. और यहाँ पे दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फिल्टर्स क्या क्या लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि वेस्टर्न रेलवे को ही मैंने कितना इशू किया, तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे को मेरे डिपो ने 291 वाउचर्स इशू किए थे, जिसका वैल्यू इतना आ रहा था 1,37 लाख. अब उसमें वेस्टर्न रेलवे के 63 वार्ड ने कितने किए हैं, तो यहाँ पे 63 वार्ड ने 231 वाउचर्स पोस्ट कर दिए थे, और 61 वार्ड ने कितने किए, 137. तो बेसिकली अभी ये पूरा डैशबोर्ड अपन स्टार्टिंग से बनाना देखेंगे. तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो आपको ओवरव्यू अभी मिल चुका है. ठीक है, तो अभी प्रोसीड करते हैं डेटा से हमने क्या किया है. तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि टिल यूनिट रेट हमारे पास डेटा मिल गया था. सिर्फ ये जो क्वार्टर का जो डेटा है ये अपन को बनाना पड़ता है, ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है. तो इसमें आप देखिए मैंने बनाया कैसे इसको, और ये जो मंथ का डेटा है ये कैसे बनाया इसको देखते हैं. फर्स्ट विल कवर द फॉर्मूला. आप नोट कीजिए जैसे मैंने अप्रैल पे क्लिक किया APR में, मेरा फॉर्मूला बन के आ रहा है टेक्स्ट ऑफ C2 MMM, यहाँ अपन देख सकते हैं. तो टेक्स्ट ऑफ C2 MMM क्या शो कर रहा है कि C2 कॉलम जो है 4 अप्रैल, उसमें बेसिकली बीच का जो मंथ है MMM फॉर्मेट में मेरे को एक्सट्रैक्ट करके देगा. तो और कहाँ पे देगा, यहाँ पे O2 कॉलम में दे देगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला मैंने बनाया. इसके बाद जब आप एक ये फॉर्मूला बना लेंगे और आप ऐसे ड्रैग ड्रॉप करते जाएंगे, तो आपको सब्सिक्वेंट यहाँ से जितनी डेट में से जो जो मंथ है वो आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे. ये मुझे क्यों करना पड़ा, आई विल रिपीट, बिकॉज आई डिडंट हैव द मंथ बाय रेडी डिफॉल्ट. अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास मंथ है यू आर गुड टू गो. अभी मुझे डिराइव करना पड़ रहा है, तो पहले मैंने मंथ डिराइव किया है. मंथ डिराइव करने के लिए आप एक बार फॉर्मूला वापस देख लीजिए, इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट C2, क्योंकि यहाँ से लेना है, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कोलन MMM, फिर वापस ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ से मेरा मंथ आ गया. ओके, अब मेरे पास ये सारे मंथ आ चुके हैं एज यू कैन सी टिल एंड. टोटल 3000 वाउचर्स तक मेरे मंथ रेडी हो गए. अब मुझे इन मंथ से क्वार्टर निकालना है. तो क्वार्टर कैसे निकलता है, आई विल शो यू. क्वार्टर भी बहुत इजी है. बेसिकली जब अप्रैल सपोज हमारा 4th मंथ होता है, तो 4th मंथ जो क्वार्टर होते हैं वो 3 मंथ्स के सेट में होते हैं. ओके, क्वार्टर 1 इफ वी से अप्रैल मई जून, तो 3 है. तो यहाँ पे अप्रैल की मेरी जो मंथ है
मंथ अप्रैल 4 होता है, 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उस यहाँ पे फॉर्मूला आप नोट कीजिए क्या क्या बनता है मेरा क्वार्टर निकालने के लिए। जो भी हमारा मंथ है उसको 3 से डिवाइड कीजिए, फिर जो वैल्यू आती है उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसको राउंड ऑफ करने के बाद 1 से माइनस कर दीजिए 0। ओके, ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज अगर मैं ये -1 नहीं करूंगा तो इट विल शो मी 1 ग्रेटर। जैसे अप्रैल के मंथ को तो वो दिखा देगा Q2 और जनवरी फरवरी मार्च के मंथ को दिखा देगा Q1 दिखाएगा, ठीक है। ये एक्सेल में ऐसा है। तो बेसिकली हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर क्वार्टर्स निकालने हैं तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल वे में राउंड अप करके आप क्वार्टर्स निकालेंगे तो राउंड अप करने से आपका हमेशा एक वैल्यू ज़्यादा आएगा। अप्रैल मई जून का Q2 दिखाएगा वो, और जो हमारा क्वार्टर नेक्स्ट होता है लास्ट वाला नवंबर दिसंबर वाला, वो वैसे होता तो Q3 है लेकिन वो उसको Q4 दिखाएगा अगर हम इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे तो, ठीक है। बट सिंस हमें we want it in a financial year way manner the quarters, so that's why we are using this formula, ठीक है वही राउंड अप फंक्शन ही हमने यूज किया है, बट उसमें -1 हम अलग से हाथ से लिखा है सो दैट -1 करके हमारा क्वार्टर अचीव हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्वार्टर रेडी कर लिया है और हमारा मंथ हमारा रेडी है, और जो किस डिपार्टमेंट को हमने इशू किया और वो कौन से रेलवे को बिलोंग करता था वो हमने 4 यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं, ठीक है। ये बेसिक, अगर ये डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप बहुत अच्छा है, नहीं तो आप डिराइव, अगर आपको डेटा डिराइव करना है यू कैन डू इट इन दिस मैनर। ओके, तो अभी अपन प्रोसीड करेंगे कि 5 हमें पिवोट शीट बनानी है इस तरह की, जैसे हमने दिखाया 5 क्राइटेरिया का। तो व्हाट विल आई डू इज, मैं रॉ डेटा पे जाऊंगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कंट्रोल ए करके मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैं गया इंसर्ट में एंड आई एम इंसर्टिंग द पिवोट टेबल। पिवोट टेबल इंसर्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है रॉ डेटा पूरा सिलेक्ट करना है। आई सेड यस, ओके, मेरे को पूरा डेटा चाहिए टू मेक माय पिवोट शीट्स। और वेयर यू वांट टू द पिवोट टू बी प्लेस्ड, तो मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट कर दिया है कि मैं चाहता हूँ कि नई जगह मेरा पिवोट शीट बने, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करते आप देखेंगे शीट नंबर 1 मेरा रेडी हो गया है और यहाँ पे मेरी पिवोट फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने क्या लिया था कि मेरे किस मंथ में, मंथ वाइज बेसिकली मैं देखना चाह रहा था मंथ वाइज मैंने कितना कितना इशू कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ हाउ मच वी हैव इशूड इज व्हाट वाज द वैल्यू, सम ऑफ द वैल्यू, व्हाट वाज द क्वांटिटी एंड हाउ मेनी वाउचर्स इज दैट। तो वाउचर, नंबर ऑफ वाउचर निकालने के लिए बेसिकली व्हाट विल डू इज, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि पिवोट शीट कैसे बनाई जा रही है। पिवोट शीट में क्वांटिटी का तो सम ठीक है क्योंकि हमें देखना है कि हमने टोटल कितने आइटम इशू किए हैं। द वैल्यू का भी सम ठीक है कि हमें देखना है कि टोटल कितना हमने वैल्यू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट पिवोट शीट के लिए यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो साइड में हम पिवोट फील्ड्स देख सकते हैं कि हमें क्या क्या फील्ड्स उस टेबल में से अवेलेबल है। सीरियल नंबर 1 मैंने बता दिया था, सीरियल वाइज है, वार्ड वाइज है, डेट वाइज है। तो फर्स्ट जो हम शीट बना रहे हैं वो हम पिवोट जो बना रहे हैं वो हम यहाँ पे देखें मंथ वाइज बनाना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट इन मंथ वाइज के इन विच मंथ हाउ मच वी हैव इशूड, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले मैंने मंथ पे टिक कर दिया है। नेक्स्ट वैल्यू लूंगा, वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो इट विल शो मी टोटल हाउ मच आई हैव इशूड, व्हाट वाज द वैल्यू, क्वांटिटी, how many items I have issued in that month, and last most vouchers, that how many as 1313 we have punched. This voucher should go to values में। ओके, आप देख सकते हैं आपका कोई भी डाटा ऐसे रो में नीचे आ जाए तो आप उसको ड्रैग करके
वैल्यूज में शिफ्ट कर दीजिए फ्रॉम रोज टू वैल्यू, तो आपका डेटा ऐसे आ जाएगा। जब डेटा प्रिपेयर हो गया है देन अपन और ऐसे पिवोट टेबल पांचों बना लेते हैं एक ही जगह पे। अभी अपन फॉर एग्जांपल ये पिवोट टेबल मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फील्ड्स आ रहे हैं, तो अब मेरे को ब्लैंक वापस करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आई शो यू हाउ टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच वंस अगेन, और बाकी की रेस्ट 3 जो बचेगी वो हम कॉपी पेस्ट से कर लेंगे उसको, ठीक है। आई रिपीट के सबसे पहले अपन ने डेटा कंट्रोल ले करके डेटा सेलेक्ट किया था, देन हम इंसर्ट में गए थे, फिर पिवोट टेबल में गए थे। पिवोट टेबल के बाद डेटा सेलेक्ट हो गया था, वर्कशीट पूछ रहा है मुझसे किस वर्कशीट में मुझे करना है, तो मैंने इस बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर दिया और लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ शीट 1 कि मुझे इस शीट में डालना है, एंटर कर दिया, ठीक है। इस शीट में मेरी पिवोट आ जाएगी, ठीक है। नहीं हो रहा तो न्यू वर्कशीट से न्यू वर्कशीट में बना लीजिए, ठीक है। अपना शीट 1 वाज बेसिकली मंथ वाइज, तो आई रीनेम इट एज मंथ वाइज, ओके। एक डेटा मंथ वाइज आ गया। दूसरा, दिस डेटा विल प्रिपेयर एज वार्ड वाइज, और क्वार्टर वाइज करते हैं पहले, क्वार्टर वाइज, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज निकालना है तो व्हाट वी शुड टेक इज, जो हमने क्वार्टर प्रिपेयर किया था लास्ट में, तो लास्ट मोस्ट कॉलम क्वार्टर आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि सम ऑफ क्वार्टर डायरेक्ट कर रहा है, फॉर बाय डिफॉल्ट कर रहा है, तो हमें वी कैन एडजस्ट इट फ्रॉम हेयर। ये वैल्यू से इसको ड्रैग ड्रॉप करके रो लेवल में ले आइए, तो इट विल शो मी द 3 क्वार्टर्स। अभी अप्रैल से लेकर नवंबर तक 3 क्वार्टर्स हो गए, सो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ओके। क्वार्टर वाइज हाउ मच वी हैव इशूड, सो टोटल वैल्यू पे जाना है, सम ऑफ वैल्यू इट इज शोइंग मी। टोटल हाउ मेनी आइटम्स आई हैव इशूड, तो आइटम सिलेक्ट कर लूंगा, क्वांटिटी कुछ नहीं है, सेम काम हम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स डैम इजी। एक बार आप फंडामेंटल समझ जाएंगे तो ठीक है। वाउचर वही सिलेक्ट किया है, लास्ट टाइम वाला इशू आ रहा है कि वाउचर आपका जो फर्स्ट मंथ है उसके नीचे ले रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, वी वांट सम। तो ये वाउचर को हमें ड्रैग करना है रो से लेके वैल्यूज में, तो हमारा काउंट ऑफ वाउचर नंबर्स आ गए कि हाँ हमने फर्स्ट क्वार्टर में इतने वाउचर्स इशू किए, सेकेंड क्वार्टर में 1158 वाउचर्स हमने इशू किए, ओके। सो ये हमारा क्वार्टर वाइज आ गया, ओके। इसके बाद कॉपी पेस्ट से कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको कुछ नहीं करना है, पिवोट शीट में कहीं भी आप क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये पिवोट शीट है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी पेस्ट दबा देना, दैट्स ऑल। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल पूरी टेबल कॉपी कर लिए। इसके साइड में इसके नीचे एक कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगी। इसका पैरामीटर मैं चेंज कर दूंगा। क्वार्टर वाइज हमारा रेडी हो गया है, तो थर्ड पिवोट शीट टेबल जो मैं बना रहा हूँ ये वार्ड वाइज बनाना है, तो मुझे वार्ड सिलेक्ट करना है वाउचर, और जो क्वार्टर्स है उसको हटा दूंगा मैं लास्ट में से, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हैं, और मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ जिससे आप इसको कवर कर पाए, ठीक है। अभी हमारी जो पिवोट है उसमें आप देखिए काउंट ऑफ वाउचर नंबर और सम ऑफ वार्ड कर रहा है, बिकॉज वार्ड क्या नंबर में है, तो इसको सिस्टम को समझ नहीं आ रहा है कि 61 प्लस 62 प्लस 63 ऐसा कर रहा है वो, बट वार्ड हमारा क्या है, इट्स ए यूनिक आइडेंटिटी, हमें वार्ड वाइज करना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरे वैल्यूज में वार्ड है, सम ऑफ वार्ड को मैं यहाँ से ड्रैग करके रो में ला दूंगा। रो में लाते ही यू कैन सी रो लेबल मेरा बन गया है 61, 62, 63, और यहाँ पे टोटल हमने इतने इश्यूज कर, टोटल वाउचर्स हमारे इतने रेडी हैं, सम ऑफ इतना है, सम ऑफ क्वांटिटी इतना हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसी का ही आप देख सकते हैं मंथ वाइज हमारा कवर हो गया, क्वार्टर वाइज हमारा एक पिवोट टेबल बन गया, वार्ड वाइज पिवोट टेबल बन गया। अब जो
वापस इसी को ही कॉपी कर लीजिए। कॉपी पेस्टिंग इज इजी फॉर क्रिएशन ऑफ द पिवोट टेबल, जब तक हमारा डेटा सेम रहेगा, हमें सेम ही डेटा यूज करना है तो हम कॉपी पेस्ट से काम चला सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमें जो डेटा है वो मंथ हो चुका है, क्वार्टर हो चुका है, वार्ड हो चुका है, रेलवे वाइज निकालना है कि किस रेलवे को मैंने कितना इशू किया। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे रेलवे सिलेक्ट कर लूँगा और क्वार्टर हटा दूंगा, तो रेलवे वाइज मेरा इजीली डेटा अवेलेबल हो गया। देखिए इस रेलवे को मेरे BRCY डिपो ने इतने सम ऑफ आइटम्स इशू कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक और पिवोट टेबल बन गया है। थोड़ा क्लमजी ना हो तो मैं एक और शीट बना लेता हूँ। तो फिर जो 3 क्राइटेरिया यहाँ बन चुके हैं, मंथ वाइज एक क्राइटेरिया यहाँ पे था, एक लास्ट क्राइटेरिया जो मैं डिपार्टमेंट वाइज का है वो मैं एक न्यू शीट में बना लेता हूँ जिससे इजीली समझ आ जाए। न्यू शीट में बनाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे वापस डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, Ctrl A किया, इंसर्ट किया, पिवोट टेबल में गया, न्यू वर्कशीट कर लिया, न्यू शीट में आ गया। इस शीट में मुझे डिपार्टमेंट वाइज करना है कि मैंने किस डिपार्टमेंट को कितना इशू किया है। तो डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ, ये डिपार्टमेंट्स ब्रॉडली आ गए, ठीक है। और उसको कितना वैल्यू मैंने इशू किया था, सम ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स आ गई है, कितना क्वांटिटी इशू किया था और कितने वाउचर्स पंच हुए थे। ओके, अब देखिए वाउचर्स पंच करते ही वो पूरा कमर्शियल के नीचे चला गया है, तो वो रो में उसका मेन इशू है। रो से वाउचर को उठा के वैल्यूज में इधर ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, आपका सॉर्ट हो जाएगा कितने वाउचर्स मैंने इशू किए हैं। तो ये डेटा देख के हमें समझ आ रहा है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट को हमने 446 S1313 इशू किए थे, जिसका टोटल वैल्यू 2 करोड़ 15 लाख आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप बेसिकली ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हमने कवर की है कि कितना वैल्यू का हमने आइटम्स इशू किए हैं, उसका कितना क्वांटिटी था और कितने वाउचर्स थे। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके टिल अपना 16 नवंबर 2023 तक हमने 13 करोड़ का सामान इशू कर दिया है। और वो इशू करने के लिए हमने 2657 वाउचर्स हमने पंच किए हैं, ओके। और जो टोटल क्वांटिटी था वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप हर पिवोट टेबल में देखेंगे ये डेटा आपको सेम ही मिलेगा, 2657 13 करोड़ 4 यहाँ पे है, तो 13.4 करोड़ यहाँ पे भी है, ओके। ये बस क्राइटेरिया डिफरेंट हो रहे हैं कि किस रेलवे को कितना किया, उसके कौन सा डिपार्टमेंट था उसको कितना किया, कौन से वार्ड ने कितना किया, कौन से क्वार्टर में और कौन से मंथ में हमने कितना किया, ठीक है। अब बेसिकली हम आगे स्लाइसर्स का यूज करेंगे, फिल्टर्स का क्यों करेंगे, क्यों सपोज ये डेटा एक बार आप देखिए और अब इस डेटा के बेस पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ठीक है जो ब्रेक शू है आपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कब और कितना यूज किया इशू किया था, वो तो यू कैन इजीली टेल कि हमने 11,914 का कर दिया था, ठीक है। व्हाट अबाउट कंसोलिडेटेड डेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईस्टर्न रेलवे के सिग्नल डिपार्टमेंट को आपने मई के मंथ में कितना इशू किया था, तो बेसिकली मैं मल्टीपल पैरामीटर्स को उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। तो अब आप सोचिए ये तो मेरा फॉर 9 मंथ्स का डेटा था, अगर मैं यही डेटा थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रोज आ जाएगा तो आप इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उसका आउटपुट नहीं दे पाएंगे अनलेस आप उसके लिए कोई स्मार्ट वर्किंग ना करें लाइक डैशबोर्ड्स एंड द स्लाइसर्स, ठीक है। तो जब डेटा बड़ा हो जाता है एंड इट्स कवरिंग ह्यूज वास्ट एस्पेक्ट्स लाइक अलग अलग रेलवेज हैं, उसके अलग अलग मंथ्स हैं, किस किस क्वार्टर में कितना दिया, तो ये सारे जब आपके एक साथ पैरामीटर आने लगेंगे कि हम आपसे क्वेश्चन वही पूछेंगे कि भाई ऐसा जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो इस डैशबोर्ड में देखिए मैं सब कवर हो रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ठीक है मेरे 63 वार्ड ने, या ठीक है इसको भी फिल्टर हटा देता हूँ, पूरे रेल मतलब मेरे डिपो ने ईस्टर्न रेलवे को एक सेकेंड ईस्टर्न रेलवे पे क्लिक करके
जून के महीने में कितना इशू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ स्लाइसर्स में, तो मेरे को डेटा दिखा दे रहा है कि ठीक है आपने 140 टाइम्स इशू किया था ईस्टर्न रेलवे को और टोटल उसके स्टोर्स की वैल्यू थी 87 लैक्स, ठीक है। तो ये 5 जो एस्पेक्ट्स हैं ये आप ऐसे डेटा लेके आप नहीं कर पाएंगे उसको, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है। तो इसके लिए हम पिवोट टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मंथ वाइज ले लिया है, क्वार्टर वाइज ले लिया है और वार्ड वाइज लिया है और रेलवे वाइज ले लिया है, बट यू कैन सी कि जो हमारे आउटपुट्स हैं वो सेम ही है, और ऑफ कोर्स वो तो सेम होना ही है कि टोटल हमने क्वार्टर, अभी 3 क्वार्टर हो चुके हैं, तो अप टू टिल क्वार्टर 13 करोड़ का हमने इशू कर दिया है। तो वो तो चाहे आप वार्ड वाइज देख लीजिए, चाहे आप क्वार्टर वाइज देखिए, या आप क्यूमुलेटिव मंथ वाइज देख लीजिए, वो वैल्यू आपकी सेम होनी ही है, ठीक है। तो सपोज अब हमारा ये डैशबोर्ड हम स्क्रैच से बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है वो तो आपने देख ही लिया है। ये जैसे जैसे मैं रेलवे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सेंट्रल रेलवे को कितना इशू किया, 1.16 करोड़ हमने इशू कर लिया है। क्वार्टर वाइज का हमारा ग्राफ यहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ को ही कवर कर लेते हैं कि हाँ मंथ वाइज ये जो मंथ वाइज है कि ये मंथ वाइज डेटा आएगा कैसे, ठीक है। मैं अब आगे बताता हूँ कि डैशबोर्ड बनेगा कैसे, एक एक डैशबोर्ड स्क्रैच से बनाते जाएंगे अपन, ओके। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे अप्रैल से लेके नवंबर तक टोटल वाउचर्स हैं इतने और टोटल उनकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इतना सा गैप छोड़ देता हूँ बिकॉज ये जैसे जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर्स लगाऊंगा ये कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे स्लाइसर लगा देंगे, यहाँ पे सिर्फ मुझे अप्रैल का चाहिए, तो ये नीचे का डेटा तो वैसे ही गायब हो जाएगा, तो हो सकता है आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट ना आ पाए। इसलिए आप थोड़ा यहाँ पे नीचे इन वैल्यूज़ को आप लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वो डिटेल में अभी जब हम आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि वाई आई एम डूइंग लाइक दैट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये फील्ड ले लिया है, इसका क्या एड्रेस है, B16 है। B16 में मैं 2657 को रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ, तो कुछ नहीं करूँगा, B16 में जाके इक्वल टू प्रेस करूँगा और सम फंक्शन लेके यहाँ से यहाँ तक का मैं सम ले लूँगा, ओके। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दूंगा, मेरा ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी ये हाथ से तो मैंने लिखा नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला बना के आप इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए तो आपकी बाकी वैल्यूज भी आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा आप और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा डेसिमल में ज़्यादा ना आए, तो वी कैन रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स ऑल्सो सो दैट थोड़ा प्रेजेंटेबल डेटा और लगे। ओके यहाँ पे मेरा सम B4 से B11 तक जा रहा है, मतलब अप्रैल से लेके नवंबर तक जा रहा है, और मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लूँगा तो मेरा ये वैल्यूज़ आ जाएंगी इसमें, ओके। इसका भी डेसिमल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी डेसिमल नहीं चाहिए, ओके फाइन। और जब हम ग्रैंड वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली है तो आई डोंट वांट दिस टैब, मतलब ये रो अपने अभी काम की नहीं है, ओके। तो इसको हाइड कैसे करना है आपको, इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे डिज़ाइन पे जाना है, डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे ग्रैंड टोटल आता है, ग्रैंड टोटल में ऑफ फॉर रो वैल्यूज़ कर देना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि सपोज नवंबर के बाद दिसंबर ऐड हो जाए और यहाँ पे तो ग्रैंड टोटल लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आप ऐड नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, आप हमेशा जितना भी आपका डेटा है उससे थोड़ा सेफ डिस्टेंस लेके आप नीचे अलग से डेटा को पॉपुलेट कीजिए, जिससे आप फॉर्मूला में मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोचिए कि आपका 311 से लेके 177 तक का डेटा है, अब मैं, और हमने जो समेशन चलाया है वो यहाँ से यहाँ तक चला है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 3 मंथ्स का ही लेने लगूँ, जुलाई, सपोज जुलाई तक ले लिया मैंने, तो भी मेरा फॉर्मूला तो स्टैंड गुड करेगा ही।
अगर मैं यहाँ का ये नीचे का डेटा डिलीट भी हो जाए या मतलब कभी नहीं आ रहा है, कोई फिल्टर लगा दिया मैंने कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर का ही डेटा चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा आपका सिलेक्ट होगा और उस करस्पॉन्डिंग आपके सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो जब हम स्लाइसर बनाएंगे तब आपको दिखा दूंगा। चलिए यहाँ पे एक करते हैं, मंथ वाइज एक स्लाइसर डाल ही देते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि हमने ये अलग से डेटा क्यों पॉपुलेट किया है। व्हाट वाज द नीड फॉर कॉपिंग द डेटा इंडिविजुअली विद आफ्टर ड्यूली प्रोवाइडिंग अ गैप। हमने वो ग्रैंड टोटल से फॉर्मूला से डेटा क्यों नहीं उठाया, एक स्लाइसर डालेंगे और वो आपको पता चल जाएगा क्यों। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये पूरी पिवोट शीट जो है, पिवोट टेबल है, पिवोट टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए एंड स्लाइसर में जाइए। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर में मैं मंथ वाइज कर देता हूँ। ओके ओके, ये मेरा मंथ आ गया। इस मंथ को मैं जैसे ही सपोज अप्रैल कर रहा हूँ, आप देखिए जो मेरा अप्रैल है वो रह गया, नीचे का जितना भी डाटा था पूरा गायब हो चुका है। ओके, अभी क्या होता, अभी अगर ग्रैंड टोटल होता तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होता। मैं दिखा देता हूँ आपको, फाइल में जाके देखिए, ये जो मैंने पिवोट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन पे है ग्रैंड टोटल, अगर मेरा ऑन रहता तो क्या होता, दैट आई विल शो यू। देखिए जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया अप्रैल, और ये मेरा जो पूरा ग्रैंड टोटल था ये भी ऊपर चला गया, और मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बोलता है कि भाई B4 से लेके B11 तक आप ऐड कीजिए, तो ये 311 प्लस 311 डबल डबल डेटा इज शोइंग मी। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे फिल्टर्स लगाएंगे ये ग्रैंड टोटल आपका रहेगा। ठीक है, तो अपन को वी डोंट वांट दैट इशू, हम चाहते हैं, देखिए जून किया, जुलाई किया, अगस्त किया, 3 महीने का लिया, तो ग्रैंड टोटल भी उसमें दिखा रहा है, वो तो ठीक है, बट जो मेरा समेशन का फॉर्मूला है वो गड़बड़ हो जाएगा अगर ये ग्रैंड टोटल भी इशू हो जाएगा। ग्रैंड टोटल भी अगर उसमें ऐड अप हो जाता है तो 1104 मेरा आउटपुट आना चाहिए था, बट ये 2208 आ जा रहा है। ठीक है, तो टू सॉल्व दैट इशू हमने थोड़ा स्मार्ट वर्किंग किया है, हमने जो ये ग्रैंड टोटल है इस ग्रैंड टोटल को ही हटा दिया है। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं किया है, सबसे पहले तो आपका जो टोटल डाटा है उसको रखना है, उससे थोड़ा एक सेफ डिस्टेंस लेके चलना है। 13 14 फिर मैंने सेफ डिस्टेंस है कि हाँ भाई ये जो ग्रैंड टोटल है कुछ भी हो इन कमिंग मंथ्स किसी भी कॉस्ट पे नीचे तक यहाँ तक तो नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसको हम गायब ही कर देंगे, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एडिंग अप टू आवर वैल्यू एंड गिविंग द फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, तो वही उसको हाइड करने के लिए तरीका यही है कि हमने किसी पिवोट शीट, पिवोट टेबल है उस पर क्लिक किया है, डिज़ाइन पे जाके जो ग्रैंड टोटल्स हैं उसको यहाँ से ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब आप कितना भी ट्राई कीजिए, जैसे मैं फर्स्ट क्वार्टर का ले लेता हूँ, फ्रॉम अप्रैल, देन कंट्रोल दबा के मई, देन जून, ये ऐड होता जा रहा है। देखिए आप देख रहे हैं ये ऐड होता जा रहा है, क्यों, हमारा फॉर्मूला क्या है, B4 से लेके B11 तक जाएगा, ये इसका थ्रेशोल्ड है, कोई भी वैल्यू B12 तक आ जाएगी ये फॉर्मूला हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक कम से कम 3-4 सेल का गैप लेके छोड़िए और फिर अलग से उसको, ग्रैंड टोटल के भरोसे हमें नहीं रहना, हमें सम करके अलग से ये डेटा निकाल लेना। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली डायनामिक डेटा है, हाथ से हमने हार्ड कोड नहीं किया है। ठीक है, तो फिल्टर्स क्लियर कर रहा हूँ, और ये हमारा एक ऐसे स्लाइसर काम करता है, आपने देख लिया। तो टोटल जो हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ से जो हमने फॉर्मूले बनाए थे उसमें से हम मंथ वाइज जो दिख रहा है ये सब हमारा मैच कर रहा है। टोटल 13 करोड़ का हमारा इशू हो चुका है, 2657 वाउचर्स हमने इशू किए थे। ठीक है, तो मंथ वाइज हमारा जो ये डाटा है ये रेडी है। अब यही डेटा हम आगे डैशबोर्ड में उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें फटाफट से क्या करना है, जैसे ये हमने मंथ वाइज बनाया ऐसे क्वार्टर वाइज हमारी शीट रेडी है, पिवोट रेडी है, वार्ड वाइज हमने बना दी है, रेलवे वाइज हमारी पिवोट टेबल रेडी है। ठीक है,
एंड दिस इज लास्ट, इसको रिनेम कर देता हूँ डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज हमारी पिवोट टेबल रेडी है, ठीक है। और जो न्यूमेरिक हमारे टारगेट्स हैं जिसको हमें असेस करना है और जिससे हमारी प्रोग्रेस पता चलती है कि हमने टोटल कितने वाउचर इशू किए, सबसे ज़्यादा कितना हमने सामान इशू किया है और कितने आइटम्स थे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा पिवोट कवर हो चुका है। रॉ डेटा हमने कैसे एनालाइज किया है, रॉ डेटा मतलब हम क्या उससे आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, हम उससे क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कवर किया है। तो अब ये जो डैशबोर्ड है ये मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा यूजिंग जो हमने पिवोट शीट्स एक एक करके अभी बनाई थी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक ब्लैंक शीट हमने बना लिया है, इसको रीनेम करते हैं स्क्रैच डैश, स्क्रैच डैशबोर्ड, ठीक है। इसको सबसे पहले प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बाहर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ए और 1 के बीच में, यहाँ पे फिल करके ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप क्या कलर देना चाहते हैं। किसी को ब्लू पसंद है, किसी को मतलब लाइट पसंद है, कुछ भी आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम टेकिंग इज थोड़ा सा उसको लाइट कलर देते हैं जिससे डैशबोर्ड उस पर प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अपन को एक पूरा एक ब्लैंक शीट अपन ने देख लिया, उसको हमने सॉलिड फिल कलर यहाँ से कर दिया ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में हम जाएंगे, ओके तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फिल्ड द होल शीट बिकॉज वी डोंट वांट ग्रिड्स, हमें ब्लैंक लेआउट चाहिए जिसमें हम ग्राफ्स डाल पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले एज वी कैन सी ये इस डैशबोर्ड में हमने बॉक्सेस डाले हैं, कितने बॉक्स हैं ये 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 4 बड़े बॉक्स हैं और 2 अलग टाइप के हैं, ठीक है। सो इन स्क्रैच डैश सबसे पहले कुछ इन सम ऑफ द वर्जन्स ऑफ MS Excel you can find these shapes in insert, in my version it's showing in the quick access, वो बेसिकली insert shape tools में आपको जाना है, ठीक है। आपको ऐसा सर्च बार मिल रहा है तो आप इसमें सर्च करके भी लिख सकते हैं shapes, ठीक है। तो शेप में मुझे ऐसे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ओके। तो फर्स्ट रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देन कॉपी, ये सेकंड रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हमें दिखाएगा कितने वाउचर्स हमने किए थे, ये सेकंड रेक्टेंगल हमारा कवर करेगा व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द आइटम्स व्हिच वी हैव इशूड, एंड द थर्ड वन के व्हाट वाज द हाउ मेनी आइटम्स वी हैव इशूड, ठीक है। ये 3 ग्राफ यहाँ पे मैं बनाऊंगा। फोर्थ ग्राफ में डिफरेंट टाइप ऑफ आपको सिखाता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं कि बेसिकली किस क्वार्टर में हमने कितना इशू किया था, वो मैं ग्राफ चाहता हूँ, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज का मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रहा हमारा पिवोट जो शीट था। ये क्वार्टर वाइज का जो पिवोट टेबल है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका डाटा सिलेक्ट करना है और मैं इंसर्ट में जाऊंगा और हेयर वी कैन सी इंसर्ट कॉलम और अ बार चार्ट, यहाँ पे मैं 2D कॉलम यूज करूंगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी व्हाट इज द डेटा इट्स कवरिंग, फर्स्ट क्वार्टर में इतना इशू हुआ, सेकेंड क्वार्टर में इतना इशू हुआ, थर्ड क्वार्टर में इतना इशू हुआ, और इन वैल्यूज का आप टोटल निकालोगे आपको 13 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल ये फील्ड्स को मैं हाइड कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करके हाइड दबा दिया है, ठीक है। थोड़ा इसको शॉर्ट करेंगे, इस चार्ट को Ctrl+X करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। कितना इजी है, ये हमारा एक चार्ट दिख गया। If we don't want these values also, we click on plus and we hide the legend, ठीक है। तो it will remove the legends।
ओके एज वी कैन सी ये हमने ऑक्यूपाई किया है फॉर द नंबर ऑफ वाउचर्स, दिस वी हैव रिजर्व्ड इट फॉर द टोटल वैल्यूज कितनी इशू की है हमने, दिस वी हैव केप्ट इट फॉर कितना आइटम हम व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी वी हैव इशूड। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये बॉक्स बनाया था हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो वी गो टू शेप में दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, shape rounded corner rectangle and this is the here हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा शो हो वो इसके अंदर शो हो। ठीक है, तो हम ऐसे पहले बॉक्सेस रेडी कर लेंगे। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड वी। ओके ओके, अभी इसमें हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स, टोटल वैल्यू in rupees, and the last is total quantity in numbers of course. To make it more presentable we'll select this data, इसको सेंट्रल करके इसका साइज थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड वे आई एम टेकिंग इट एज 20 करते हैं, लेट्स डू इट 20। ठीक है, सेम इज विद दिस, ये वाउचर जो हमने लिखा है इसको विल टेक इट इनटू द सेंटर एंड विल इंक्रीज द साइज टू 20 बड़ा हो रहा है तो विल टेक इट 18। ओके, total value in rupees will take it as, we'll select the text, center it and increase it to 20। ओके, अब यहाँ पे ये जैसे हमारा ग्राफ रेडी हुआ था, यहाँ पे हमें वैल्यूज पॉपुलेट करनी है इन 3 कॉलम्स में। ठीक है, ये 3 सेल में, तो हाउ विल डू इट, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। यहाँ पे हम हाथ से तो लिख नहीं सकते कि टोटल वाउचर 1400 है या 15,000 है, वॉट एवर, हाथ से नहीं लिख सकते। वी वॉन्टेड टू बी डायनामिक बिकॉज जैसे जैसे हम विल पुट फिल्टर्स, ये डेटा चेंज होगा। ओके, तो बेसिकली वो डेटा हमारा कहाँ से आएगा, जो हमने डेटा मंथ वाइज में प्रिपेयर किया था, यहाँ पे जो हमने सीखा था कि टोटल समेशन में गैप छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा व्हाट इज उसका एड्रेस क्या है, B16 है। ओके, तो ये B16 का डेटा हमारा वाउचर देगा, C16 का हमारा टोटल वैल्यू देगा और D16 जो इसका एड्रेस है वो हमारा टोटल क्वांटिटी देगा। ओके, सो इन स्क्रैच डैश विल पुट द फॉर्मूला एज इक्वल टू B16 और इक्वल टू करके B16 में तो आएगा नहीं बिकॉज वो शीट अलग है, तो वे गो टू मंथ वाइज और ये सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या प्रिपेयर हो गया, इक्वल टू मंथ वाइज जो हमारी शीट है, मंथ वाइज शीट का नाम है एक्सक्लेमेशन B16। ओके करना, एंटर करना, यू विल सी यहाँ पे 2657 डेटा पॉपुलेट हो गया है। ठीक है, इस डेटा को थोड़ा बड़ा कर देंगे अपन टू मेक इट प्रेजेंटेबल। ओके ओके, इसको कलर वी कैन चेंज सिंस येलो इज इजीली विजिबल, विल पुट ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, हमने हाथ से कुछ भी नहीं लिखा, वी आर यूजिंग अ बेसिक फॉर्मूले। जो 20 मंथ वाइज जो हमारी शीट है, जो आपकी शीट होगी उसके B16 में जो भी वैल्यू होगी
वो वहाँ पे चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2657 की जगह में कुछ और वैल्यू आएगी तो दैट वैल्यू विल शो अप हेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए इस बॉक्स में, इक्वल टू प्रेस कीजिए एंड देन गो टू मंथ वाइज, और जो वैल्यू अपना है मंथ वाइज का C16 है, इधर करके एंटर प्रेस कर दीजिए, वैल्यू आ गई। सेंटर कर दीजिए इसको, सेंटर एंड इंक्रीज द एंड मेक इट येलो। ओके, थोड़ा बड़ा हो गया। टू मेक इट सेम, कीप इट 2424। ठीक है, ठीक है। टोटल वैल्यू इन रुपीज इट शोइंग मी। टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स मैंने 2657 पंच किए हैं। कब तक? फ्रॉम अप्रैल टिल 16 नवंबर। टोटल क्वांटिटी अगेन विद द फॉर्मूला, आप कहीं भी क्लिक कीजिए आपको फॉर्मूला दिखेगा, कहीं भी हाथ से हार्ड कोड वैल्यू नहीं लिखनी है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी के लिए इक्वल टू, लेट्स गो टू माय मंथ वाइज एंड दिस इज माय टोटल क्वांटिटी, प्रेस एंटर, बिंगो। सेंटर कर दीजिए इसको, सेंटर, इंक्रीज इट टू 24, change the color to this, okay, yellow, change it to 24, okay। तो all three we can see, all three are being populated from the formula। ये हमारा आ रहा है B16 में से, ये हमारा आ रहा है C16 में से, और ये लास्ट हमारा आ रहा है D16 में से। किसका? मंथ वाइज शीट में से। ठीक है, बिकॉज दिस डेटा विल चेंज जैसे जैसे हम फिल्टर्स लगाएंगे। आई शो यू हाउ। और ये जो चार्ट है ये हमने क्वार्टर वाइज चार्ट बनाया था यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइसर्स हम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्लाइसर्स यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाता हूं जिसमें मैं I'll go to shape, draw a box, here I'll write filters। जो मेरा क्राइटेरिया रहेगा, this filter will be my criteria के how I can change the data। This also I'll increase to 20। okay, now अभी हमें स्लाइसर इंसर्ट करने हैं, तो go to any of the pivot sheet, पिवोट टेबल पे क्लिक कीजिए। जैसे हमें यहाँ पे अप्रैल मतलब ये मंथ का स्लाइसर अपना आया था, ऐसे अपन सारे स्लाइसर इस एक टेबल में से निकाल लेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द मतलब रो लेबल पे क्लिक कीजिए, कहीं भी ये डाटा सिलेक्ट कर लीजिए, गो टू इंसर्ट एंड गो टू स्लाइसर्स। वंस वी गो टू स्लाइसर्स पूछेगा क्या क्या स्लाइसर हमें चाहिए, तो बेसिकली हम मंथ वाइज चाहते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं इन केस इट्स कंफ्यूजिंग, लेट्स डिलीट इट। ठीक है, जो हमारा पावर पिवोट शीट था, पिवोट टेबल सिलेक्ट कीजिए, गो टू स्लाइसर, सिलेक्ट स्लाइसर। सबसे पहले वार्ड वाइज का स्लाइसर चाहिए मुझे। नेक्स्ट स्लाइसर आई वांट इज रेलवे वाइज, नेक्स्ट स्लाइसर आई वांट डिपार्टमेंट वाइज, नेक्स्ट स्लाइसर आई वांट मंथ वाइज, एंड द लास्ट स्लाइसर डिपो, नो सर, वार्ड वाइज है, वार्ड वाइज है। तो 3 तरह के स्लाइसर्स हम डाल देते हैं। वन, टू, 3 and 4। अब बिकॉज हमने क्वार्टर वाइज का स्लाइसर इसने लिया है क्योंकि क्वार्टर का डेटा तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है डायरेक्टली कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में हमें कितना इशू किया, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना। तो वैसे क्वार्टर वाइज दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्लमजी ना बनाने के लिए क्वार्टर वाइज का डेटा हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 3 फिल्टर लेंगे, विल कीप इट वेरी सिंपल। लेट्स गो टू द स्लाइसर,
सारे स्लाइसर मेरे रेडी हैं। अभी कनेक्शन बनाना बताता हूँ, इनका कनेक्शन कैसे बनता है। सारे स्लाइसर एक साथ रखिए। सर व्हाट डेटा वार्ड में जाके राइट क्लिक करना है, गो टू रिपोर्ट कनेक्शन। ओके, रिपोर्ट कनेक्शन में जो मेरा जो स्लाइसर है वो किस किस पे एक्टिवेट होना चाहिए, लेट्स सिलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, यहाँ पे आपका कोई भी टिक छूट गया तो दैट शीट का डेटा आपका स्लाइसर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, इज़ वेरी सिंपल। जैसे ही आपने स्लाइसर बनाया आप उनका कनेक्शन सबसे कर दीजिए। रिपोर्ट कनेक्शन हेयर ऑल्सो आई एम टेकिंग ऑल द शीट्स। ये शीट ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए इतना दिखा रहा है आपको। ठीक है, फॉर्मूला शीट में मैंने सबसे कनेक्ट कर दिया है, मंथ वाइज की शीट में कनेक्ट किया, क्वार्टर वाइज की पिवोट टेबल से स्लाइसर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कनेक्ट करोगे तब आपको ये इसको कॉपी पेस्ट कर पाओगे, नहीं तो आपका स्लाइसर वर्क नहीं करेगा। इसलिए दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट क्लिक करके कनेक्शन में जाना है, सब पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन ग्रीवांस के सर स्लाइसर से डेटा चेंज नहीं हो रहा है, या सर स्लाइसर कॉपी तो कर लिया है बट वो काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ द ओनली रीज़न, आपके कनेक्शन इसमें नहीं आपने सेट किए होंगे। ठीक है, ये 4 टाइप के स्लाइसर्स हैं, सबका कनेक्शन हर शीट से मैं दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज वंस आई कॉपी दी स्लाइसर्स इट विल वर्क नाइसली विदाउट एनी इश्यूज। ओके, ठीक है, ये मेरी 4 स्लाइसर्स हैं, रेडी हो गए हैं। इनको कंट्रोल करके एक साथ मैं कॉपी करता हूँ एंड विल पेस्ट इट इन आवर डैशबोर्ड। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया है, डैश में गया, कहीं भी क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। ओके, माय स्लाइसर इज रेडी। अब मैं इसका स्लाइसर का आपको इसका लेआउट चेंज करना सिखाता हूँ कि हाउ टू डू इट। ठीक है, तो स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, स्लाइसर का यहाँ पे यू कैन सी इन स्लाइसर पे जैसे आपने क्लिक किया ऊपर आपको स्लाइसर का ऑप्शन आ गया होगा। नहीं तो जनरली ये डिज़ाइन या एनालाइज बटन पे भी रहता है, उसमें आप ऐसे ढूंढना, आपको कॉलम्स दिखेगा। ठीक है, तो व्हाट आई वांट इज कि ऐसा दिखे। ठीक है, तो इसको मैं इस वाले स्लाइसर को नीचे रखूँगा। इसको जो रेलवेज हैं इसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आई ट्राई टू ले आउट दिस स्लाइसर एज हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसमें कॉलम्स ऐड करता जाऊंगा, जैसे जैसे कॉलम्स ऐड होंगे यू कैन सी ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन ले आउट द स्लाइसर्स। अभी और मैं इसका कॉलम बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत जगह है। ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक है। ओके, ये वार्ड मेरा रेलवे का क्राइटेरिया आ गया है, वार्ड का क्राइटेरिया आ गया है, डिपार्टमेंट का स्लाइसर इतना ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। जो एक्सेस स्पेस है उसका मैं हाइट रिड्यूस कर सकता हूँ, या तो यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करके भी छोटा कर सकता हूँ। ओके, द लास्ट इज द मंथ क्राइटेरिया, मंथ क्राइटेरिया को भी यहाँ पे अपन रख लेंगे। यस, यस, ओके, तो ये हमारे फिल्टर्स रेडी हो गए हैं और ये हमारा डाटा रेडी हो गया है। ओके, एज यू कैन सी। अब बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या था, अभी मैंने काफ़ी टाइम पहले एक चीज़ बताया था कि रॉ डेटा से मैं आपसे पूछूं कि आपने साउथ सेंट्रल रेलवे को अभी तक आपने 3rd क्वार्टर में कितना इशू किया है, या साउथ सेंट्रल रेलवे के
मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कितना इशू किया, या ईस्टर्न रेलवे के सिग्नल डिपार्टमेंट को कितना, मतलब आई एम आस्किंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू द इंडिविजुअल डेटा, आई एम आस्किंग कि 3-4 कॉम्बिनेशन बना के आई एम आस्किंग यू सम डेटा, तो नहीं आप बता पाएंगे, ठीक है, बाय द टेकिंग द रॉ डेटा। बट आप यहाँ पे जैसे हमने डैशबोर्ड बना लिया, इट्स वेरी वेरी इजी। अभी मेरे डिपो ने जिसमें 3 वार्ड्स हैं, उसने साउथ ईस्टर्न रेलवे को कितना सामान इशू किया है, तो I'll do nothing, just I'll select ईस्टर्न रेलवे फ्रॉम here, और यहाँ पे मेरा डेटा बिंगो इट शोइंग मी कि टोटल मैंने 9493 वाउचर्स इशू, आइटम 140 वाउचर्स इशू किए थे, और उसका टोटल जो वैल्यू था 87 lakhs था, ठीक है। और ईस्टर्न रेलवे को इफ समबडी आस्क कि सर आपने सितंबर मंथ में कितना इशू किया था, बिंगो मैंने सितंबर के फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो मैंने 14 टाइम्स इशू किया है ऑफ द 22 lakhs वर्थ ऑफ आइटम टू ईस्टर्न रेलवे। ऐसे ही वी कैन ट्राई आउट न्यू कॉम्बिनेशंस के भाई ईस्टर्न रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे को आपने कितना इशू किया है, तो टोटल इट शो 39, ओके। और यहाँ पे भी आप डेटा देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज इज चेंजिंग, इट इज क्लियरली शोइंग मी कि फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर में आपने वेस्टर्न रेलवे को सितंबर के मंथ में कुछ भी इशू नहीं किया था, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे डिपो में 63 वार्ड में थोड़ा ज़्यादा लोड रहता है, तो इसमें वी कैन सी 63 वार्ड ने अकेले सबको ऑल ओवर इंडिया कितना इशू किया है, तो आउट ऑफ 2657 557 वाउचर्स अकेले 63 वार्ड ने ही इशू कर दिया है, ठीक है। उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू था 68 lakhs। 62 वार्ड ने कितना किया, 31 lakhs। 61 वार्ड ने कितना किया, 33 lakhs, ठीक है। आप इसको पूरा आप टोटल 3.3 करोड़, पार्डन, ठीक है। 63 वार्ड ने 6.8 करोड़ इशू कर दिया है, ठीक है। तो if I remove all the filters, it will tell me the cumulative data कि total अभी तक 13.4 करोड़ as on date issue हो चुका है, and these many vouchers were there. So this is all from my side. So this is yes, so this is all from my side. So basically we saw के dashboards का हम how beautifully we can create the the graphs and use the visualization techniques to find the end results and use it in the forecasting। कि हमें forecast करना है कि भाई 9 months में हम इतना 13.4 करोड़ इशू कर चुके हैं, तो हमारा AAC वैल्यू 25 करोड़ है, इट इज़ वेरी जस्टिफाइड कि नवंबर तक इतना कवर हुआ तो नेक्स्ट ईयर के मार्च तक कितना कवर अप हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे हम कैसे फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हैं, अपन इजीली डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।